ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 6 ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 is the sum of the squares of 3 consecutive even integers is 200 and find the integers। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 3 consecutive even integer ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। let the 3 consecutive even integers be एक ਅਸੀਂ x ਮੰਨਾਂਗੇ नहीं x + 1 ਮੰਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਓ x ਦੀ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 1 + 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 2 ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਫਸਟ ਇਵਨ ਇੰਟੀਜਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ x + 3 ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ x + 5 ਹੋਏਗਾ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1 + 1 2 ਹੋਏਗਾ। 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 + 3 4 ਹੋਏਗਾ। 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 + 5 6 ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਇਵਨ ਇੰਟੀਜਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆਫ 3 consecutive even integers। Okay, according to question, x + 1 the whole square plus x + 3 the whole square plus x + 5 the whole square is equal to 200। Okay, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੋਲਵ। ਦੇਖੋ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਲੱਗਣੇ a + b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ a + b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ a + b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਇੱਥੇ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ x² + 1 + 2x x² + 9 + 6x plus x² + 25 + 10x is equal to 200। x² + x² + x² ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3x² ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 2x + 6x ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 8 + 10 ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18x ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 + 9 ਕਿੰਨੇ 10 + 15 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35 ਐਂਡ 200 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 18x ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ 5 ਤੇ 9 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਤੇ 165 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 165 ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਕਾਮਨ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਮਨ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x² + 3 6 18x and minus 3 5 the 15 and 3 5 the 15 is equal to 0। 3 ਕਾਮਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ x² + 6x - 55 is equal to 0। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 55 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਿੰਪਲ ਆ ਕਿ 11 × 5 55 ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ 5 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ x² + 11x ਮਾਈਨਸ 5x ਮਾਈਨਸ 55 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਾਮਨ ਕੀ ਆਏਗਾ x + 11 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ 5 ਕਾਮਨ ਆ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਬਚਿਆ x + 11 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਠੀਕ ਆ, x + 11 ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x - 5 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੋ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਏਗੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਅਰਫੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਜਰਸ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ x + 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਉਹ ਆਏਗਾ 5 + 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6 ਜੋ ਕਿ ਈਵਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਹੋਏਗਾ x + 3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 + 3 ਜੋ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਐਂਡ x + 5 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 + 5 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਜੋ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ 6 8 ਐਂਡ 10 ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅ 2 digit ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਇਟਸ ਡਿਜਿਟ ਇਜ਼ 6। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ 2 digit ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੈਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ 2 digit ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 11 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ 10 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ 99 ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ 2 digit ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ओके दैन यूनिट डिजिट नंबर की होएगा मे बी एक्स है ना, तो असी 10 डिजिट नंबर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ 10 डिजिट नंबर बी वाई। ओके दैन साढ़े को नंबर जो निकल के आएगा, जो साडा नंबर होएगा ओरिजिनल नंबर जो कंसीडर होएगा यूनिट डिजिट होएगा तो यूनिट मीनस 1 होएगा तो 1 इंटू एक्स एक्स ही रहेगा, प्लस 10 डिजिट नंबर होएगा 10 इंटू वाई की होएगा साढ़े को 10 वाई होएगा। ओके इत्थे तक ही हो गया। उस तो बाद उन्होंने किया कि सीगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर असी देखिए तो उन्होंने किया सीगा जो 2 डिजिट नंबर ने उन्होंने जोड़े डिजिट्स ने एक्स एंड वाई इन्हों दोनों का जो असी प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट करके साढ़े को आंसर आ रहा 6 के बराबर। ये आ गई साड़ी फस्ट इक्वेशन। इनू थोड़ा जिहा असी सॉल्व भी कर सकते हैं जिमें कि एक्स इज़ इक्वल टू 6 ओवर वाई की फॉर्म के भी आप लिख सकते हैं फस्ट इक्वेशन। ओके दैन नेक्स्ट देखो फुल स्टॉप पा के फिर लिखा इफ़ 9 इज़ एडेड टू द नंबर 9 उस नंबर के ऐड करना ओके कॉमा द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसिस। ओके जदों असी इंटरचेंज करांगे प्लेसिस इत्थे लिखांगे बाय इंटरचेंजिंग दैन की होएगा कि जिहड़ा यूनिट डिजिट नंबर असी चूज़ कीता सी द यूनिट डिजिट नंबर इज़ इक्वल टू वो आ जाएगा साढ़े कोल वाई के बराबर एंड 10 डिजिट नंबर जो असी चूज़ कीता सी एक्स वाई वो बन जाएगा साडा हुण एक्स, मतलब रिवर्स हो गए। तो न्यू नंबर जो साडे कोल निकल के आएगा वो साडे कोल होएगा वाई प्लस 10 एक्स के बराबर। ओके हुण अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जिद्दां कह रहा सीगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए तो क्वेश्चन कहंदा सी जिहड़ा नवां नंबर निकल के आएगा ना वाई प्लस 10 एक्स वो पुराने वाले नंबर तो 9 ज़्यादा होएगा। पुराना वाला नंबर की सीगा एक्स प्लस 10 वाई वो तो 9 ज़्यादा होएगा। ये जिहड़ा नवा नंबर आ ये पुराने वाले नंबर तो 9 ज़्यादा होएगा। तो इन्हूं आपां सिंपल इस तरीके नाल लिख सकते हैं। सो दैन हुण असीं की करना है एक्स और वाई दोनों नूं असीं लैफ्ट साइड ले जाना वाई प्लस 10 एक्स माइनस से 10 वाई इज़ इक्वल टू 9 के बराबर। देखो एक्स एक्स से नाल हो जाएगा प्लस से 10 एक्स से माइनस से एक्स ही आ गया 9 एक्स ये बन गया साढ़े को माइनस से 9 वाई इज़ इक्वल टू 9। असें की करना 9 कॉमन कर लेना एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू 9 एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 9 तो एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1 ये 1 के बराबर हो गया। ओके ये इक्वेशन असीं मान लैंदे आ इक्वेशन नंबर सैकेंड। हुण अगर असीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर फस्ट का यूज़ करिए क्योंकि हुण असीं वैल्यूज़ तो करनी है ना तो असीं इत्थे करांगे बाय यूजिंग इक्वेशन फस्ट वी गैट एक्स की जगह के उत्ते की आएगा 6 ओवर वाई माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 1 एंड इत्थे असीं ले लेना एलसीएम इत्थे आएगा वाई 6 माइनस वाई स्क्वेयर इज़ इक्वल्स टू 1 6 माइनस वाई स्क्वेयर इज़ इक्वल्स टू वाई उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इत्थे की आएगा साढ़े को माइनस से वाई एंड ए भी जाके माइनस से वाई ए प्लस से 6 इक्वल टू 0 ये असीं माइनस कॉमन कर लवांगे तो ये बचेगा वाई स्क्वेयर प्लस से वाई तो माइनस से 6 इक्वल टू 0। हुण असीं 6 से फैक्टर बनाने 2 इंटू 3 6 हो जाएगा तो माइनस से 3 प्लस से 2 इक्वल टू माइनस से 1 हो जाएंगे सॉरी माइनस से 1 तो नहीं चाहिए सानू प्लस से 1 चाहिए है ना तो इस करके प्लस से 3 कर देते तो माइनस से 2 कर देते प्लस से 1 बन जाए ईजी है ना। तो इनू असी की करांगे वाई स्क्वेयर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 इन्हों दोनों के कॉमन तो इन्हों दोनों के कॉमन इन्हों दोनों कॉमन की आ गया y प्लस तो y प्लस 3 अंदर आ गया माइनस से 2 कॉमन किए अंदर बचा y प्लस 3 इक्वल टू 0 इत्थे क्या आएगा y प्लस 3 इत्थे आएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू कितनी आ गई साढ़े को माइनस से 3 तो आ गई 2 असीं पॉजिटिव वैल्यू में ही कंसीडर करना है ना। तो हुण असीं अगर असीं y लेट कर लिया कि y 2 इक्वल टू 2 ही आंसर आ तो फ्रॉम इक्वेशन फस्ट तो आप चलांगे फ्रॉम इक्वेशन फस्ट
जो इक्वेशन फर्स्ट इतने लिखी हुई है x इज़ इक्वल्स टू 6/y, x इज़ इक्वल्स टू 6/y एंड x इज़ इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 2। x की वैल्यू कितनी आ गई साढ़े को 3 आ गई। जो 3 वैल्यू आई है हुण असी पुट करांगे इस ओरिजिनल नंबर दे विच। द ओरिजिनल नंबर इज़ इक्वल टू x प्लस 10y दैन x एंड y दी वैल्यूज़ ये असी पुट करांगे। इत्थे लिखांगे देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज़ इक्वल टू x प्लस 10y। x की वैल्यू कितनी आ गई सी 3 है ना, तो y की वैल्यू 2, ये आ गया 3 प्लस 20, ये आ गया 23, साडा आंसर आ गया। ओके दैन देखो क्वेश्चन नंबर साढ़े कोल आ गया हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दे विच स्टेटमेंट की दी हुई है, अ 2 डिजिट नंबर कंटेन द स्मॉलर ऑफ 2 डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस, the product of the digit is 24 and the difference between the digits is 5, find the number। easy है। ये उन्होंने स्मॉलर और लार्जर का थोड़ा जा एग्जाम्पल दस दिता कि असी स्मॉलर और लार्जर नंबर भी कंसीडर करना है इस हिसाब नाल। चलो देखो आप डायरैक्ट लिख सकते हैं, लेट द यूनिट डिजिट नंबर बी एक्स एंड 10 डिजिट वाले नूं असीं की मान लवांगे नंबर बी वाई। हम 10 डिजिट वाला तो वड्डा ही होएगा यूनिट डिजिट वाले तो, सिंपल है। उस तो बाद ओरिजिनल नंबर साढ़े को निकल के आएगा, ओरिजिनल नंबर इज़ इक्वल टू x प्लस 10y, जिदा असी प्रीवियस किया प्रीवियस क्वेश्चन जिदा लिखा सीगा उदा असी ये करना। मगर जस्ट इतने एक स्टेटमेंट चेंज होगी द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। ओके ये असी प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स करांगे, मीनस x मल्टीप्लाई y इज़ इक्वल टू 24, x इज़ इक्वल्स टू 24 डिवाइड बाई 4y फर्स्ट इक्वेशन एंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स वड्डे दे विचों छोटा माइनस करांगे, y माइनस x इज़ इक्वल्स टू 5 के बराबर। ओके एंड यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इत्थे आप करांगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इज़ इक्वल्स टू 24/y, y माइनस 24/y इज़ इक्वल टू 5, ये आएगा y स्केयर माइनस 24 इज़ इक्वल टू 5y एंड इनू असी क्वाड्रेटिक इक्वेशन च लिखांगे माइनस से 5y माइनस से 24 इज़ इक्वल टू 0। हुण देखना कि मल्टीप्लाई करके 24 आवे तो प्लस माइनस करके माइनस से 5 आउण, इदा का किहड़ा नंबर होएगा। ओके 8 3 दा 24 हुंदा, 8 अगर असी माइनस से लवांगे तो 3 प्लस से तो ये आएगा माइनस से 5, इतने आएगा वाई स्केयर माइनस से 8y प्लस से 3y माइनस से 24 इक्वल टू 0। इन्हों देखो y आएगा अंदर आएगा y माइनस 8, इतने आ गया प्लस से 3 अंदर बचा y माइनस 8 इक्वल टू 0, y माइनस 8 तो y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है y की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो इतने आ गई माइनस से 3, y की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 8 आ गई तो असी x की वैल्यू कट सकते हैं, इतने लिखांगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज़ इक्वल्स टू 24/y, x इज़ इक्वल्स टू 24, y की आएगा 8 पॉजिटिव वैल्यू 8 एंड x की वैल्यू कितनी आ गई 3, कैंसल हो गया ना, 8 1 8 8 3 24। ओके x की वैल्यू आ गई 3 तो y की वैल्यू आ गई 8। हुण असी वैल्यू पुट करांगे ओरिजिनल नंबर के। ओके देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज़ इक्वल टू x प्लस 10y, x की वैल्यू कितनी आ गई साढ़े को 3, y की वैल्यू 8, एक ना आएगा साढ़े को 3 प्लस 80, आंसर आ गया 83। ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखें द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज़ 13। ओके एक राइट ट्रायंगल सानू बनाना पैना, सब तो पहला असी राइट ट्रायंगल बना लिया,
ये हाइपोटन्यूसिस साइड होंदी आ, इनू ए बी सी कुछ कंसीडर नहीं करना, मगर असीं तां मनना हैगा ए बी और सी। ए सी इज़ अ हाइपोटन्यूस ऑफ दिस right angle triangle and it is a 13 centimeter. And then next the difference between the other two sides, difference between, okay, इदां दा क्वेश्चन असीं फस्ट भी पहला भी कीता होया, सेम एज अ क्वेश्चन नहीं, जस्ट पर्टिकुलर लाइन बारे मैं गल कर रहा, द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड्स इज़ 7 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन दा थोड़ी लाइन तुहानूं मिल जाएगी, जिवें कि मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਓਕੇ ਯੈਸ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡਿਫਰ ਬਾਈ 4, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਲਈ ਸੀਗੀ x ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲਈ ਸੀ x-4। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ x ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ x-7। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਅਦਰ ਟੂ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਟੇਕਿੰਗ x ਐਜ਼ ਅ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦ ਸ਼ਾਰਟਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਅਦਰ ਟੂ ਸਾਈਡਸ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਰ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਰਟਰ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਲੈਟ ਆਏਗਾ BC ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ एंड AB इज़ इक्वल टू x-7 सेंटीमीटर, क्योंकि उन्होंने डिफरेंस किया। तो AC इज़ इक्वल टू कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। हुण असीं हाइपोटन्यूस दे अकॉर्डिंग गल करनी है बाई पाइथागोरस थ्योरम, PT थ्योरम भी आप लिख सकते हैं, PT स्टैंड्स फॉर पाइथागोरस थ्योरम। एंड ये विच फार्मूला की होंदा, हाइपोटन्यूस द स्केयर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर द स्केयर प्लस बेस द स्केयर के बराबर होंदा ना। अच्छा, हाइपोटन्यूस की वैल्यू हैगी ए सी द स्केयर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर हैगा साढ़े कोल AB द स्केयर इज़ इक्वल टू BC द होल स्केयर, ठीक है। AC इज़ इक्वल टू स्केयर रूट हो जाएगा, ए स्केयर इधर जाके स्केयर रूट हो जाएगा, AB द स्केयर प्लस BC द स्केयर। असीं फाइंड आउट की करना जा रहे हैं, नहीं कुछ गलत हो गया, ये पॉइंट ही गलत हो गया, क्योंकि वैल्यूज़ तो सानू तिन्ने ही गिवन है। ये पेन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा। AC की वैल्यू कितनी आ गई साढ़े को 13 द स्केयर इज़ इक्वल टू AB की वैल्यू सानू दी हुई है x-7 द होल स्केयर प्लस ये आएगा साढ़े को BC, ये आएगा x द होल स्केयर। चलो इन्हें सॉल्व करो। 13 द स्केयर होंदा 169 इज़ इक्वल टू A माइनस B द होल स्केयर, आइडेंटिटी यूज़ करांगे, x स्केयर प्लस दे 49 माइनस से 14x प्लस दे x स्केयर प्लस x स्केयर 2x स्केयर, ओके, माइनस से 14x प्लस से 49 a प्लस दे माइनस दे 169 बन गए इक्वल टू 0, ओके। ये बनेगा 2x स्केयर माइनस से 14x, तो ये बन गए माइनस दे 120 इक्वल टू 0, ओके। दैन असी 2 कॉमन कर सकते, तिन्हों के 2 कॉमन किया, x स्केयर माइनस से 7x माइनस से 60 इक्वल टू 0 एंड x स्केयर माइनस से 7x माइनस से 60 इक्वल टू 0। तो ये भी ईजी है, आप पहला भी कर चुके हैं, माइनस से 12x प्लस से 5x माइनस से 60 इक्वल टू 0, 12 5 द 60 एंड 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा आंसर, है ना, ओके। सो नैक्सट देखो, इन्होंने दोनों के विचों असीं कॉमन करना है, कॉमन क्या आएगा, इन्हों चों x माइनस 12 आ गए, इत्थे प्लस से 5 अंदर बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 12 तो इत्थे बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू साढ़े कोल कितनी आ गई 12 तो माइनस से 5, असीं पॉजिटिव वैल्यू नूं कंसीडर करांगे। अगर असीं पॉजिटिव वैल्यू नूं कंसीडर करांगे तो लास्ट विच उन्होंने पूछा भी की है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ फाइंड द अननोन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अननोन साइड्स ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ BC वैल्यू सी BC x ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀਗੀ, x ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐਂਡ AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਮਾਈਨਸ 7, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 12 ਮਾਈਨਸ 7 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, उन्होंने किया इन अ सर्टन पॉजिटिव फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर दैन न्यूमरेटर बाय 3, ओके, ईजी। लेट द
न्यूमरेटर बी एक्स होएगा। अगर इनू एक्स मनांगे तो डिनोमीनेटर न्यूमरेटर तो 3 ज़्यादा होएगा एंड डिनोमीनेटर बी एक्स प्लस 3 होएगा। ओके, एक न्यूमरेटर एक्स होएगा तो डिनोमीनेटर इज़ ग्रेटर दैन न्यूमरेटर, इसका मतलब डिनोमीनेटर की वैल्यू एक्स प्लस 3 होएगी। if one is subtracted from both the numerator and denominator, ओके अगर therefore अगर की आएगा न्यूमरेटर दोनों दे विचों असी x -1 कर दिता, x -1 कर दिता तो डिनोमीनेटर दे विच भी इसे तरीके नाल x प्लस 3 -1 कर दिता, मीनस x प्लस 2 बच गया। ठीक है, तो ये जी फ्रैक्शन होएगी वो डिक्रीज़ड होएगी बाय 1/14। ओके, ये जी फ्रैक्शन वो डिक्रीज़ड होएगी 1/14। इत्थे आएगा हुण देखो ये दो तरह दी फ्रैक्शन बन गई, एक तो फ्रैक्शन हो गई देयरफॉर एक फ्रैक्शन तो हो गई, इनू आप फ्रैक्शन दे विच लिख सकते हैं एक्स ओवर एक्स प्लस 3 की फ्रैक्शन। ये वाली यदी फ्रैक्शन जी हो गई वो आप नीचे लिख दें एक्स -1, यदि आप लिख दें इतने फ्रैक्शन जी होगी न्यू फ्रैक्शन हो गई वो होगी एक्स -1 तो एक्स प्लस 2। जी नवी फ्रैक्शन होएगी एक्स -1 ओवर एक्स प्लस 2 इज़ इक्वल टू वो पुरानी वाली फ्रैक्शन रिड्यूस होएगी 1/14। ओके, जी नवी फ्रैक्शन आ वो पुरानी वाली फ्रैक्शन तो 14 घट होएगी। हुण इस चीज़ में आपां की करना है सॉल्व करना है तो हुण असीं देखांगे आ वाली टर्म जो उधर जाएगी तो नैगेटिव हो जाएगी, एक्स -1 ओवर एक्स प्लस 2 माइनस से एक्स ओवर एक्स प्लस 3 इज़ इक्वल टू माइनस से 1/14। ओके, इनू असी करांगे सॉल्व तो ये आएगा नीचे एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये आएगा एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इज़ इक्वल टू माइनस से 1/14। इनू असी अंदर मल्टीप्लाई कर देवांगे, ये आएगा एक्स स्केयर माइनस से 3x प्लस से 3x एंड माइनस से x तो माइनस से 3 एंड इनू असी अंदर मल्टीप्लाई करांगे तो माइनस से एक्स स्केयर तो माइनस से 2x आएगा ओवर ये आएगा एक्स स्केयर, इन्होंने दोनों मल्टीप्लाई कर देना, ये आएगा 3x, ये आ गया 2x तो ये आ गया 6 इक्वल टू माइनस से 1/14। ये माइनस से एक्स स्केयर प्लस से एक्स स्केयर कैंसल। ओके, तो इत्थे साडे कोल की बचेगा प्लस से 2x माइनस से 2x माइनस से 3 ओवर ये बचेगा साडे कोल एक्स स्केयर प्लस से 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू माइनस से 1/14। आ तो यह कैंसल हो गए। ठीक है, हम देखो अगे की बचा माइनस से 3 ओवर एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 माइनस 1/14। हम माइनस इधर कैंसल हो गया, दोनों पासे कैंसल हो गया। हम असी इतने करांगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया 3 × 14 इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 6। इनू आप लिखांगे रीअरेंज करके तो ये आएगा एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 6 तो ये की होंगे साढ़े को इक्वल टू 3 4 12, ये आ गया साढ़े को 52 है ना, 42 सॉरी 42 आ गया। एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 6 माइनस से 42 इज़ इक्वल टू 0, ये आएगा एक्स स्केयर प्लस 5x 6 माइनस कर दो तो ये साढ़े को कितने आएंगे 36 आ जाएंगे, माइनस से 36 इक्वल टू 0। हम देखना मल्टीप्लाई करके 36 आवे तो प्लस माइनस करके 5 आवे कितना 9 4 36, 9x माइनस से 4x माइनस से 36 इज़ इक्वल टू 0। x इंटू एक्स प्लस 9 इंटू माइनस से 4 कॉमन कितने दी आएगा x प्लस 9 इक्वल टू 0, x प्लस 9 तो इतने आएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस से 9 तो प्लस से 4
अगर असी पॉजिटिव वैल्यू ਨੂੰ ही हमेशा कंसीडर करना। जो असी पॉजिटिव वैल्यू ਨੂੰ कंसीडर की करना आ तो फ्रैक्शन की आएगी साड़ी फ्रैक्शन जो फस्ट विच सीगी एक्स ओवर एक्स प्लस 3 ही सीगी। एक्स की वैल्यू असी पुट करांगे 4 तो नीचे 4 प्लस 3 कितना आएगा आंसर आएगा 4 ओवर 7 साडा आंसर आएगा। ओके हुण लास्ट क्वेश्चन जिहड़ा आएगा इहदा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो कहते इन एन ऑडिटोरियम सीट्स आर अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स द नंबर ऑफ रोज वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो व्हेन द नंबर ऑफ रोज वाज डबल। ओके द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो वाज रिड्यूस्ड बाय 10। The total number of seats is increased by 300। ओके चलो इत्थे देखो कहते नंबर ऑफ रोज़ जिन्नियां नंबर ऑफ रोज़ होणगियां ऑडिटोरियम के अंदर रोज़ भी लगियां अरेंज है ना सीट्स में आप अरेंज किया रोज़ एंड कॉलम्स के विच ठीक है रोज़ इदा एंड कॉलम्स इस तरीके नाल ठीक है। द नंबर ऑफ रोज़ वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो मतलब हर एक रो के अंदर जिन्नियां टोटल नंबर ऑफ रोज़ ने एक रो के अंदर उन्नियां सीट्स हैं ठीक है। तो असीं इत्थे मन चूज़ करना लेट द नंबर ऑफ रोज़ ठीक है इज़ इक्वल टू एक्स मान लिया एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के रोज़ उन्ने ही इक्वल आ सीट्स से तो इत्थे आप चूज़ करांगे नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो दे विच हर एक रो के अंदर किन्नी होंगियां एक्स ही होंगियां तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सीट्स किन्नियां होंगियां एडिटोरियम दे विच एक्स मल्टीप्लाई एक्स मीनस एक्स स्केयर आएगा एक्स स्केयर आ जाएगा। उस तो बाद उन्होंने कहा कि वैन द नंबर ऑफ रोज़ वाज डबल नंबर ऑफ रोज़ किनियां सीगियां मेरियां एक्स सीगियां तो इत्थे करांगे दैन नंबर ऑफ रोज़ हुण किनियां हो गई 2x हो गई डबल हो गई ठीक है डबल हो गई एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो जिहड़ियां नंबर ऑफ सीट्स सीगियां इन ईच रो आ वाली जिहड़ी लाइन लिखी मैं इत्थे लिख लेना मैं इत्थे नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो हुण किन्नियां हो गई हुण उन्होंने कहा आ वाज रिड्यूस्ड बाय 10 पहलां किन्नियां सी एक्स तो हुण रिड्यूस्ड हो गई एक्स माइनस 10 तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स वाज इनक्रीज्ड बाय 300 तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जिहड़ियां होणगियां वो इनक्रीज हो जाणगियां 300। हुण इन्हां दा टोटल सीट्स करूँ पहलां तो इत्थे करांगे टोटल नंबर ऑफ सीट्स ये आएगा साढ़े को 2x मल्टीप्लाई x माइनस 10 ये आ गया टोटल नंबर ऑफ सीट्स। ओके हुण असी करना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जदों रोज़ डबल हो गई सीट रिड्यूस्ड हो गई 10 उसले नंबर ऑफ सीट्स आ रही सी 2x इंटू एक्स माइनस 10 हुण जिहड़ियां नवीं सीट की जिहड़ी अरेंजमेंट हुई आ वाली ठीक है वो इक्वल टू होएगी पुरानी सीट की अरेंजमेंट दे विच 300 अगर असी प्लस कर दईए तो वो बराबर ठीक है। नवीं सीट की अरेंजमेंट नंबर ऑफ सीट्स नवीं जिहड़ियां हुण आईयां तो वो पुरानियां जिहड़ियां नंबर ऑफ सीट्स टोटल सीगियां उस तो 300 ज़्यादा ने ठीक है। हुण इनू असी करना इन्हें सॉल्व इनक्रीज लिखा है ना हाँ सॉल्व करना असी इनू करांगे ये आएगा 2x स्केयर ये आएगा माइनस से 20x यस एक्स स्केयर प्लस 300 ये आएगा सारे उधर लगे चलो आ जाओ एक्स स्केयर माइनस से एक्स स्केयर ये आ गया माइनस से 20x माइनस से 300 इक्वल टू 0 ये आएगा साढ़े कोल एक्स स्केयर माइनस से 20x माइनस से 300 इक्वल टू 0 इत्थे आके असीं फस गए। हुण आपां की करांगे कि प्लस माइनस करिए 20 आवे तो मल्टीप्लाई करिए 300 आवे सोचो पहला ओके 50
15 ਤੇ 20 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 5 into 60 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 300 ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਏਗਾ 100 ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਫਿਰ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 25 ਫਿਰ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 5 ਫਿਰ 5 ਬਣਦਾ 5 ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 10 ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ 6 5 ਦਾ 30 ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੇਖੋ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਤੇ 30 x प्लस से 10x माइनस से 300 इक्वल टू 0 हो गया ना माइनस से 30 प्लस से 10 इक्वल टू माइनस से 20 के बराबर तो 30 इंटू 10 300 बन जाएगा इन्होंने दोनों च कॉमन करना इन्होंने दोनों च कॉमन की आएगा x माइनस 30 इन्होंने दोनों च कॉमन किया तो की आएगा साढ़े को x माइनस 30 इक्वल टू 0 इतने आएगा x माइनस 30 तो इतने आएगा साढ़े को x प्लस 10 इक्वल टू 0 मगर असी तो पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 30 बस यही करना सी उन्होंने पूछा कि सी लास्ट में कुछ पूछा ही नहीं बेचारिया ने नंबर ऑफ सीट्स तो फाइंड कर लिया असी अगर असी नहीं लिखा उन्होंने इन ऑडिटोरियम सीट्स आर अरेंज एंड दिस नंबर रिड्यूस्ड बाय नंबर ऑफ जस्ट एक्स की वैल्यू से फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू आ गई नंबर ऑफ रोज जिन्नियां होणगियां उन्ने नंबर ऑफ सीट्स होणगियां ईच रो दे विच असीं फाइंड कर ही लैने इत्थे लिख लैने आ टोटल नंबर ऑफ सीट्स टोटल नंबर ऑफ सीट्स ठीक है तो कितना सीगा एक्स स्क्वायर सीगा तो इत्थे आ गया 30 का स्क्वायर सानूं पता ही है कितना हुंदा 30 मल्टीप्लाई 30 मीनस 900 के बराबर okay so thank you students